Good morning class. Already we have discussed about the question number 1 till question number 26 for chapter number 10. Today we are starting with question number 27. This is the solution, last solution for the exercise, and then we are starting with chapter number 4, that is chemical bonding and molecular structures. Children, when we talked about the particular question number 27, it is about the justification of the statement, or we can say that you have to give reason for particular statement. तो यहाँ पे सबसे पहला दिया हुआ है कि Na2CO3 that is known as sodium carbonate is alkaline. Alkaline that means basic in nature. This is one type of base which is dissolved in water. तो क्यों है? So here the answer is Na2CO3 is a salt of, here carbonic acid is a weak acid and a strong base that is NaOH. और weak acid और strong base है, तो यहाँ पे strong base is NaOH and weak acid is H2CO3. तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का जो सॉल्ट बनेगा वो हमेशा बेसिक होगा नेचर में. दिस इज द रीजन व्हाई व्हेनेवर इट इज अंडरगोइंग द हाइड्रोलिसिस इट इज गोइंग टू फॉर्म द OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज alkaline solution or alkaline salt, we can say that. Secondly, alkaline metals are prepared by electrolysis of their fused chlorides. क्यों उनके फ्यूज क्लोराइड से बनते हैं? तो उसका रीजन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो आप अगेन यू आर गोइंग टू लर्न इन क्लास 12 इन चैप्टर नंबर 3. तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ अल्कली मेटल विच इज मोर हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ पे लिखा होगा कि वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, और उसकी वजह से जब भी हम कोई भी एक्विक सोल्यूशन बनाते हैं अल्कली मेटल्स का क्लोराइड के साथ, सपोज यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोराइड सोल्यूशन बना है, और व्हेनेवर इट इज अंडरगोइंग इलेक्ट्रोलाइसिस H2 इंस्टेड ऑफ द अल्कली मेटल इज प्रोड्यूस एट कैथोड. तो जो मेटल है उसकी जगह पे वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, एंड दैट्स व्हाई अल्कली मेटल्स आर गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर ओन फ्यूज्ड क्लोराइड्स. अब थर्ड है सोडियम इज फाउंड टू बी वेरी मोर यूजफुल देन पोटेशियम. इसका भी आंसर है कि पोटेशियम जो है मोर रिएक्टिव है देन दैट ऑफ सोडियम, बिकॉज वो नेचर में कम मिलता है, और सोडियम इज फाउंड इन मोर एक्सटेंट दैट ऑफ सोडियम. वो अर्थ में 8th नंबर पे मिलने वाले दोनों एलिमेंट्स हैं, बट मोर एफिशिएंटली रिक्वायर्ड element is sodium and it is more found in nature. That's why we can say that sodium instead of potassium, sodium is more useful than that of potassium. Now next is to balance the equation that already we have learned in 10th class, so there is no need to discuss. You can do by yourself also. Na2O2 and water, whenever sodium peroxide react with water, they are going to produce caustic soda, that is nothing but sodium hydroxide along with hydrogen peroxide. So that you can do by yourself. KO2, that is potassium peroxide, and water, again they are forming, instead of H2O2, instead of two products, here we are getting one more product, that is oxygen gas. And sodium oxide, when react with carbon dioxide, it produces sodium carbonate, that is known as the alkaline salt. So that you can, I think you can do by yourself as a practice purpose. Now next when we talk about children, so how will you explain the following observation? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेरिलियम ऑक्साइड इज मोस्टली इनसॉल्युबल इन वाटर, व्हेयरएज बेरिलियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर. तो लेटाइस एनर्जी जो है, लेटाइस एनर्जी क्या है चिल्ड्रन, कि जब भी दीवार बनती है तो ब्रिक्स चाहिए, वी रिक्वायर्ड रिपीटेडली यूनिट्स ऑफ ब्रिक्स. उसी तरह जब भी कोई क्रिस्टल बनता है तो दे रिक्वायर्ड लेटाइस, अ स्मॉल यूनिट, और स्मॉल यूनिट रिपीटेडली ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लेटाइस. और वो लेटाइस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे बोलते हैं लेटाइस एनर्जी. ठीक है, अगर ब्रिक तोड़नी है तो अच्छे से टूटे, एक हाथ मार के टूटने वाली है नहीं, इट्स रिक्वायर्ड मोर एनर्जी. उसी तरह लेटाइस क्या है, लेटाइस इज we can say that a bunch of unit, repeatedly unit, or in units are going to be there repeatedly joined together form a lattice. और जो भी बेरिलियम, when we talk about lattice energy of beryllium oxide, it is more higher than that of the hydration energy. That means addition of water is we can say that less than that of the lattice energy, and that's why it is insoluble in water. Whereas beryllium sulfate जो है वो
आयनिक है नेचर में, आयनिक है, दैट मीन्स व्हेनेवर दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे आर फॉर्मिंग द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आयन. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन दैट ऑफ लेटाइस एनर्जी, इसीलिए वो क्या होंगे, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है तो वो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे. सो दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट. यू कैन राइट दैट कि बेरिलियम ऑक्साइड में हाइड्रेशन एनर्जी कम है और लेटाइस एनर्जी ज़्यादा है, और व्हेन वी टॉक अबाउट बेरिलियम सल्फेट उसमें हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है एंड लेटाइस एनर्जी इज समवॉट लेसर देन दैट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी. That's why beryllium sulfate is more soluble rather than beryllium oxide in water. Now next is बेरियम ऑक्साइड इज सॉल्युबल बट बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल. ये जब हम सॉल्ट एनालिसिस करेंगे तभी भी आप देख पाओगे कि बेरियम सल्फेट को जब भी हम वाटर में ऐड करेंगे तो वो कर्डी टाइप ऑफ अपीयरेंस देगा. जो भी जैसे कर्ड होता है उसे डिसॉल्व करो बटर मिल्क में करो तो थोड़े थोड़े डॉट्स दिखते हैं, वैसा इट्स नॉट अ ट्रांसपेरेंट, वो ट्रांसप्लूएंट सॉल्यूशन बनेगा. तो यहाँ पे उसका आंसर होगा कि दोनों ही आयनिक कंपाउंड्स हैं, बट अगर हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं बेरियम ऑक्साइड की, वो ज़्यादा है उसकी लेटेस्ट एनर्जी से, इसीलिए वो कैसा है, सोल्यूबल इन वाटर. और व्हेन वी टॉक अबाउट बेरियम सल्फेट तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी समवॉट लेसर देन दैट ऑफ लेटेस्ट एनर्जी, इसकी वजह से वो क्या है, इनसॉल्यूबल इन वाटर. इसी तरह लिथियम आयोडाइड इज मोर सॉल्यूबल देन पोटेशियम आयोडाइड इन इथेनॉल. बोथ ऑफ द आयोडाइड्स आर देयर गोइंग टू बी सॉल्यूबल इन इथेनॉल, बट लिथियम आयोडाइड इज मोर सॉल्यूबल देन दैट ऑफ KI. तो उसका रीजन है कि लिथियम आयन के पास, when we talked about comparison of size of lithium and potassium, lithium has a smaller size than that of potassium. अभी लिथियम आयन करेंगे दैट मीन्स इट लूज वन मोर इलेक्ट्रॉन, तो उसकी साइज कंपेरेटिवली और कम हो जाएगी. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिथियम आयन जो है इट इज़ वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू द पोटेशियम आयन. और जो भी पोलराइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो आयोडाइड आयन के पास वो ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली जब भी वो लिथियम के साथ जुड़ेगा तब. इसीलिए लिथियम आयोडाइड इजीली डिसॉल्व होता है इथेनॉल में, और पोटेशियम दैट विल डिसॉल्व बट नॉट मोर देन दैट ऑफ लिथियम आयन. सो दिस आर द रीजंस विच यू कैन राइट. अगर देखो सिमिलरली ये दोनों के फर्स्ट और सेकेंड के रीजन बोथ आर सेम. अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, इट इज 30 और इट इज मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस. बोर्ड ने अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं, या तो 1 मार्क ऑब्जेक्टिव रखे हुए हैं जिसमें पूछ सकते हैं. यहाँ पे लिखा विच ऑफ द अल्काइल मेटल इज हैविंग लीस्ट मैरिटल फॉर्म. यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप के फैमिली मेंबर है सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम एंड सीजियम. तो सीजियम की साइज ज़्यादा है जिसकी वजह से इट मैंने टॉक अबाउट मेल्टिंग पॉइंट इज लोएस्ट. ठीक है, यहाँ पे पूछा है लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो बिगेस्ट साइज है सीजियम का. और वी नो दैट व्हेन वी टॉक अबाउट lithium, sodium, potassium, then cesium, rubidium, cesium and francium. तो melting point इसका कम होगा cesium. Which of the following alkali metals give hydrated salt? इसमें से कौन सी ऐसी मेटल है जो अपने आप में whenever it is going to be there dissolve water तो hydrated salt form करेगी. तो यहाँ पे lithium is our smallest one and that's why it is having the highest density charge on it. And it attracts the water comparatively more than these three, that is sodium, potassium and cesium. तो lithium easily क्या करेगा, hydrated salts बनाएगा, that is LiO into 2H2O और LiCl2 into 2H2O. Next is which of the following alkaline earth magnocarbonate is thermally most stable? तो यहाँ पे सारे सेकेंड ग्रुप के आप देखो तो कार्बोनेट्स हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट एंड बेरियम कार्बोनेट. थर्मली मोर स्टेबल मीन्स हीटिंग की व्हेनेवर वी आर गिविंग हीटिंग देन ऑल्सो विच सॉल्ट इज मोर स्टेबल व्हेन वी अप्लाई हीटिंग, तो भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट होगा नहीं. तो ये सब में से ये इजीली डिकम्पोज है, ये भी डिकम्पोज होगा, ये भी डिकम्पोज होगा, बट इट रिक्वायर्स समवॉट मोर हीटिंग, और मोर हीटिंग होगा तो भी वो डिकम्पोज होगा नहीं, वो स्टेबल रहेगा, वो है बेरियम कार्बोनेट. So this is about the exercise of chapter number 10. I'll send the PDF or you can write the exercise by yourself from the particular Vedantu or Tiwari academic solution, NCERT solution. And we are starting with chapter number 4 by tomorrow. So that is all about today.
In the next lecture we are starting with chapter number 4. Thank you and have a nice day children.